नोट की हूं तो कुछ रह गए थे मुझे बता दें। एक था अर्बनाइजेशन, जो मुझे याद है मैं वो लिखता हूं, चाइल्ड अब्यूज, और देन वी हैड पॉपुलेशन, ड्रग्स, minorities, then we have energy, food, pollution, okay, or water, yes, human trafficking, okay, और जी आसान जरूर, स्ट्रीट क्राइम्स। हमने वैसे मोस्टली अर्बनाइजेशन हो गया, नहीं हुआ, अब टॉप पे लिखा हुआ अर्बनाइजेशन, मुझे परेशान कर दिया पूरा। फ्यूडलिज्म हमने कल डिस्कस किया था, फ्यूडलिज्म, डिड वी डिस्कस फ्यूडलिज्म यस्टरडे? हमने किया था, ओके। लेट्स स्टार्ट जी। हमने यस हमने जेंडर इश्यूज में लास्ट डिस्कस किया था, ट्रांसजेंडर्स के हवाले से बात की थी, वी टॉक्ड ऑन दैट, दैट्स ट्रू। Let's go to urbanization. Urbanization means the process of increasing population in urban areas. Shifting population into urban areas is what we call the urbanization process. So Pakistan ke andar currently ठीक हो गया, thank you Asad, thank you. Now urbanization, पाकिस्तान के अंदर 40% पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज, और अर्बन एरियाज के अंदर क्या प्रॉब्लम होते हैं? आई गेस द क्लासिकल एग्जांपल इज दैट ऑफ कराची, व्हाट इज हैपनिंग टू कराची, जिसको अर्बन फ्लडिंग कहते हैं, और दैट इज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द अनप्लान्ड एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन इन पाकिस्तान। इतने बड़े सिटी की प्लानिंग इटसेल्फ एक ह्यूज policy making issue है, huge financial issue है, so we don't expect Karachi to be well planned now, and particularly जो cities already बन चुके हैं उनकी planning को streamline करना, that becomes, if not impossible, that becomes very difficult. So urbanization में Pakistan's 40% population lives in urban areas and this number is significantly increasing. Urbanization की वजह क्या है? There are lots of reasons for urbanization. अर्बनाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्या है वो बाद में आएंगे, बट अर्बनाइजेशन की वजह क्या है, क्यों लोग शहरों की तरफ जाते हैं? So obviously it is because of poor infrastructure in rural areas, because of lack of employment in poor areas, because of lack of health facilities, because of lack of educational facilities, and also because of the feudal system that Pakistan has in the rural areas. So there are lots of factors, health, education, employment, facilities, etc., that are transportation का issue है. So a lot of issues are there in rural areas, जिनकी वजह से people tend to migrate towards urban areas. और second reason is जो government का neglect है, government's focus on development of urban areas and neglect of the rural areas. This is one of the another reasons why there is an issue of urbanization in Pakistan. अच्छा, urbanization होने से क्या होता है? Problem is not with urbanization, problem is with the unplanned urbanization. Urbanization में obviously a lot of people have to stick to a limited area, therefore it requires huge infrastructure development for that. You need roads, railway networks, transportation, you need health facilities. More population in a limited area means more health facilities are needed. Similarly, you need electricity transmissions, you need water sanitation, etc., etc., etc. So you have to make sure about their jobs as well. So फिर law and order की बात की जा सकती है. So lots of problems that emerge because of unplanned urbanization in general and particularly unplanned urbanization. So this unplanned urbanization creates a lot of security, a lot of economic and a lot of
kind of infrastructure problems in urban areas. So this is a major problem in Pakistan ji. और पाकिस्तान में चूंकि unemployment, poverty, infrastructure poor होता जा रहा है रूरल एरियाज में, कोई मेजर डेवलपमेंट्स वहां पे नहीं हो रही, therefore we think that urbanization problem is likely to continue to grow. एक प्रॉब्लम जो इसके अंदर आता है वो ये है कि आपकी अर्बनाइजेशन जब हो भी रही है, दैट इज हॉरिजॉन्टल अर्बनाइजेशन, उसको हॉरिजॉन्टल सेंस में एक्सपेंड हो रही है सिटीज रादर देन द वर्टिकल अर्बनाइजेशन. और उसका इंपैक्ट ये होता है दैट अ लॉट ऑफ फर्टाइल लैंड that could have been used for agriculture or forestation, etc., that is now being inhabited by barriers and DHAs and all that stuff. ये जो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह हैं ये बनना शुरू हो जाती हैं. So they are the direct outcome of urbanization and therefore directly costing us the crucial agriculture fertile lands. आप देख लें, लाहौर में मुझे कंफर्म है, इस्लामाबाद का मुझे थोड़ा सा आइडिया है, कराची का मुझे नहीं है, और मोस्टली यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन नजर आती होगी सॉर्ट ऑफ. जी एक लाहौर में वर्टिकल ऑप्शंस शुरू हुए हैं, बट यू वोंट फाइंड मच ऑफ इट. इस्लामाबाद में भी स्टार्ट हुए हैं F11 के अंदर जाके, या PHA के फ्लैट्स हैं, लेकिन आपको कराची के अलावा कोई मेजर सिटीज नजर नहीं आएंगे जहां पे वर्टिकल अर्बनाइजेशन, इवन अर्बनाइजेशन इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम. हॉरिजॉन्टल जो है वो इट एड टू द प्रॉब्लम. अगर आप वर्टिकल भी करेंगे, प्रॉब्लम्स लाइकली टू कंटिन्यू. वो हॉरिजॉन्टल वाला इशू तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं वो यहां पे रहेंगे. वही मुझे नहीं पता आप किस गवर्नमेंट की बात करें. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी प्रोविंशियल, जो कि प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है, पंजाब में तो ऐसा कोई बैन नहीं है, आप उठाकर देख लीजिएगा. बट वर्टिकल को बैन नहीं किया था, वर्टिकल अब अलाउ करना शुरू किए ग्रेजुअली. वर्टिकल एक्सपेंशन इज अलाउड इन लाहौर एटलीस्ट, और इस्लामाबाद में अब अलाउ करना शुरू किया फॉर सम टाइम्स. यस जुल्फिकार, ट्रू. इसी को हम जुल्फिकार कहते हैं कि इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस. ये सारे प्रॉब्लम जो इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन है, जो प्रोविजन है, बेसिकली चीजें, ये सारे गवर्नेंस के प्रॉब्लम बन जाते हैं. उसकी एक वजह करप्शन होती है और एक वजह आपकी फाइनेंशियल वीकनेस भी बन जाती है. बट दिस इज ऑल इज अगेन हॉरिजॉन्टल में चल रहा है. नहीं वही आई डाउट दैट मैं इसको, अगर पंजाब की बात कर रहे हैं तो मैं लाहौर की बात पे कंफर्म कर सकता हूँ. आई हैव सीन इन द लास्ट ईयर सो, आई डोंट नो आप की बात बता, बट हो सकता है उसकी एनओसीज वगैरह पहले ली गई हूँ, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशंस इन लाहौर. आप बैरियर से आगे चले जाएं, इफ यू गो इन दैट डायरेक्शन. अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन रही तो गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किया रावी में बनाने का, वो भी तो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ही हो जाएगी. बट सो आई गेस बैन नहीं है. यस, एक प्रॉब्लम ये है कि देखिए, अच्छा वही अच्छा वो, लेकिन है तो हॉरिजॉन्टल ना, वो बैरन लैंड होगी लेकिन है तो हॉरिजॉन्टल. एग्रीकल्चर लैंड पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड होती बहुत कम है, वैसे ही बहुत कम होती है, क्योंकि टैक्स देना पड़ता है, लोग डिक्लेयर ही नहीं करते उसको. अच्छा क्यों अर्बन कल्चर, अच्छा प्रॉब्लम ये है हम अर्बन कल्चर से क्यों है. एक तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के साथ एक प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट समझती है कि अर्बन जो हाउसिंग है या जो अर्बन वर्टिकल अर्बनाइजेशन है, ये इसको दे थिंक दैट इट विल बिकम अनसेफ, बिकॉज पाकिस्तान में बिल्डिंग प्रोटोकॉल, बिल्डिंग जो guidelines हैं, they are usually not followed. और what happened in Islamabad after that 2005 earthquake, उसकी वजह से गवर्नमेंट इसको इनसिक्योर फील करती है, and they think that it's not a bad idea. और secondly दूसरी वजह ये that पाकिस्तान में कल्चर नहीं है वर्टिकल अर्बनाइजेशन का. People don't like to live in flats and all that thing. People like to live with huge lawns and because उसकी वजह ये है, हम जब रूरल से अर्बन माइग्रेट करते हैं, when we migrate from rural to urban, we are familiar with a particular lifestyle. And when you're familiar with a particular lifestyle, it becomes difficult for you to get used to. तो cultural acceptability की बात भी आ जाती है उसके अंदर. That's true. Yes, Ikra, that's true. Agreed.
But again, this creates a lot of problem. Urban flooding आप example दे सकते हैं, आप इसके अंदर law and order के problems की बात कर सकते हैं, आप इसके अंदर infrastructural problems की बात कर सकते हैं. There are lots of impacts of urbanization that are taking place in Pakistan. और obviously ये pollution से भी link करेगा यहाँ पे जाकर. Child abuse. There are two kinds of child abuses in Pakistan. That's true. That's true. चाइल्ड अब्यूज में दो तरह से चाइल्ड अब्यूज की बात करता हूं. एक चाइल्ड लेबर एंड सेकंड इज द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज. शरिया, दैट्स ट्रू, बट दैट चेंज इज वेरी वेरी स्लो एज सच. आई एग्री. शरिया आपने जो लाहौर के अंदर बात की वो आप ठीक कह रहे हैं. वो इवन बहुत सी जगहों पे हो रहा है वर्टिकल अर्बनाइजेशन की. आप डीएचएस में चले जाएं या चाहे आप बैरिया में चले जाएं या आप गुलबर्ग की बात कर रहे हैं, अस्करी की बात करें, अस्करी टावर्स जितने भी बने हुए हैं, दे ऑल आर वर्टिकल और यहाँ पे कल्चर डेवलप हो रहा है. बट अगेन प्रीडोमिनेंटली उतनी फास्ट नहीं है. एनीवे, चाइल्ड अब्यूज की बात करते हैं. लेबर, चाइल्ड लेबर एंड सेक्सुअल अब्यूज. ट्रू वर्ड. अच्छा, now let's start with the child abuse. Child abuse is child labor is a major problem in Pakistan, but it's not that simple. It's a very complicated problem. True, Komal. True. Now, child labor कहते हैं anybody who is under the age of 18 and works. That person is called चाइल्ड लेबर. 18 साल से कम उम्र का, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो. पाकिस्तान में इट्स इलीगल, बट वी ऑल नो दैट इट हैपेंस. और उसके होने की वजह यह है, गवर्नमेंट इज वेरी रिलक्टेंट टू एनफोर्स दिस काइंड ऑफ लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, का लॉ में होगी, लेकिन आई गेस मेरे अंडरस्टैंडिंग है वो है होता ही है 15 ईयर्स होती है, लेकिन 15 ईयर्स के बाद विद लिमिटेड टाइम आवर्स आप कर सकते हैं. लेकिन जो अल्टीमेट एज है वो यू कांट हैव अ फुल टाइम जॉब बिफोर द एज ऑफ 18. उससे पहले आप पार्ट टाइम जो है वो होती है और 15 ईयर्स से आप अनवर्ट कर सकते हैं. ज़ेरा, दैट्स राइट. लेकिन मैं इसको, मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, चाइल्ड लेबर इज अ चाइल्ड अब्यूज. अब्यूज का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय अब्यूज? Abuse is when you actually mistreat somebody. And child labor is child abuse because those children who work, they are not paid as per their work. अवल तो वो illegal है उनको hire करना. But the rights of the child, they do not get the kind of salaries that they deserve. We all know that. बच्चों को क्या उतनी ही पे देते हैं जितनी आप बड़ों को देते हैं? Do we pay them the same? We don't. So the problem is the exploitation of the children in the name of the work, and that's why I call them as a child abuse. Now, child labor में क्यों इसको कहते हैं that क्यों ये एक issue है? और लेकिन इस ऐसा issue है जिसपे हम there can always be a two-way discussion. Let's suppose if we do not allow the child labor, what will happen is that is likely to create more poverty. That is likely to create more social problems for their families. Sometimes, though the child labor, चाहे वो एक है या multiple है, they become the entire source of income for their families. They become the only source of their families for income. And problem is, if you remove them from work, it would likely to create poverty, and it is likely to create other. If you don't allow them to work, they can get involved in illegal activities, drugs, street crimes, etc., etc. So this is the dilemma in Pakistan, considering that we have 25% poverty in Pakistan, and in that rate of poverty, if you totally ban the child labor, that is likely to aggravate the problem in Pakistan. So somehow, government, we know that it's a human rights issue, we know that it's a child abuse, and government does not allow the child labor theoretically, but practically it is reluctant to implement them because of peculiar socio-economic conditions in Pakistan. Government fund कर नहीं सकती, और obviously बात है, जो poor children हैं, they can't afford for themselves too. This is again an issue जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है. Solution क्या है? What is the solution to that? Then solution is complicated,
बट ये मेरा अपनी जाती राय है, हो सकता है आप लोग इससे डिसएग्री कर रहे हो, सो यू कैन राइट योर ओन सोल्यूशन टू। गवर्नमेंट ने तो बैन किया होता है चाइल्ड अब्यूज में, चाइल्ड लेबर को लीगली, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंस्टेड ऑफ बैनिंग इट, आई थिंक जो 15 ईयर्स की बात की ऊपर हमने, जो चाइल्ड लेबर है above 14-15 years, that should be allowed, but with specific conditions. And that condition, for example, if the minimum rate for an ordinary labor is 18,000, the minimum wage for the child labor should be more than that. That should be 20,000 or 25,000. Usse kya hoga, that some of them will get jobs, yes, but some एक limited amount चाइल्ड लेबर में जाएगी, ज्यादा लोग बच्चे नहीं जाएंगे। एक सेकंड, या आप बढ़ा सकते हैं उसकी सैलरी को हायर कर दें, या आल्सो प्रोवाइड द कंडीशन दैट द एजुकेशन ऑफ दैट चाइल्ड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर। जिस तरह हमने एक लॉ है पाकिस्तान के अंदर कि अगर आप काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो उसकी जो सोशल सिक्योरिटी है, यानी उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल ओनर। जस्ट लाइक दैट, जो आपके चाइल्ड लेबर है, चाहे वो दुकान में काम कर रही है, घर में काम कर रही है, उसकी एजुकेशन, हेल्थ तो चले अलग, एजुकेशन शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर, मेक इट कंपल्सरी ऑन देम सॉर्ट ऑफ। तो इस तरह की आप कंडीशन के साथ आप चाइल्ड लेबर को किसी हद तक कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, दिस इज अ टेम्परेरी आइडिया दैट आई कैन सजेस्ट। दोनों में से एक काम फायदा, आई एम नॉट सेइंग दैट ओनली इंक्रीज देयर सैलरीज, आई एम सेइंग इधर सैलरी और एजुकेशन, एटलीस्ट दैट शुड बी देयर। दैट्स ट्रू युसरा, एग्जैक्टली। उससे आपका एजुकेशन लिटरेसी भी बढ़ जाएगी, और ऑब्वियसली आपकी जो चाइल्ड लेबर है वो काम भी करेगा, अपनी इनकम भी कर लेगा, उसके साथ एजुकेशन भी हो जाएगी। सो दिस इज माय आइडिया जी। सो इधर इंक्रीज द सैलरी फ्रॉम स्टैंडर्ड सैलरीज, और also cover education as part of the job. This is something that is needed. Shahriyar, we can't generalize this thing. Children avoid education, they opt to work other than go to school. I don't generalize this thing. I don't think so. Sometimes शरियार, हमारे बच्चे जो होते हैं, they sometimes don't know, इसलिए वो बच्चे होते हैं, sometimes you have to tell them what is right and not, and they might, some of them might not be willing to go to schools, but I guess this is the responsibility of the society to make sure that they go to school. और by the way, ये discussion है भी नहीं, और discussion इसी नहीं है because पाकिस्तान के law में बड़ा clearly है that education is compulsory. Up to 16 of education is compulsory in Pakistan by law. And if any parents do not send their kids to schools, those parents are liable to be punished by the law of Pakistan since the 18th Amendment. इसलिए तो अब option ही नहीं है. That's true का. दूसरा issue जो है child abuse की वजह से, वो है child sexual abuse. So labor and sexual abuse. On sexual abuse, आप जानते होंगे, there are lots of incidents in Pakistan as recently as 2 days ago. 2-3 दिन पहले भी एक वाकया हुआ था. Now this is so unfortunate that in Pakistan, अब मैं एक जगह स्टेटिस्टिक्स किसी ने शेयर किए थे मेरे साथ लास्ट क्लास के अंदर, so almost 40% से ज्यादा जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, दैट इज डन टू द मेल. सो इट मींस यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी है, बट इट इज जनरली अ कॉमन थिंग अक्रॉस द जेंडर्स. दिस इज मोस्टली अक्रॉस द जेंडर्स. हाउएवर, that's Hamza, that's very unfortunate, and I understand that most of those abuses are not reported in Pakistan, or obviously Pakistan के अंदर तो शायद it was not considered an issue before that unfortunate incident जो ज़ैनब बेटी के साथ हुआ था in कसूर. उससे पहले तो शायद पाकिस्तान के अंदर ये awareness ही नहीं थी that it's an issue. Since then obviously एक sensitization movement start हुई है, but I don't think that apart from passing the bill, sensitization जरूर डेवलप हुई है, केसेस कम नहीं हुए. The cases continue to grow in Pakistan despite that law. So law should have been deterrence, sensitization should have improved the situation, but I guess years have passed and I don't see any major
change in that. A change नजर नहीं आ रही होती, and it happened as recently as a couple of days ago. I was so surprised to hear that children as young as 2 years and 3 years are being raped and sexually abused, and I don't know what's happening to society. Let me explain the causes, और उस cause को ही हम solution निकाल सकते हैं. True. और interestingly, this happens across the economic classes. ये इसमें ना कोई religion की ban है, इसमें ना gender की discrimination है, ना economic class की है. It happened in LGS and it happens in madrasas. So it happens across society. ये street में भी होता है, DHS में भी होता है. It happens everywhere. So it's across the class culture as well. Now, अगर हम इसके solution की तरफ जाएं, तो मुझे लगता है कि इसकी जो काज है और जो प्रिवेंशन है, मैं अगर इसको लेकर जाऊं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, आप देखिएगा मोस्टली ट्रू 8 साल की बच्ची का मैंने पढ़ा था, कोई 2-3 दिन पहले वाकया हुआ था एक. नाउ व्हाट हैपेंड इज, हमारी सोसाइटी में कल्चर में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है, आप शायद जानते होंगे, हम अपने बच्चों को जब हमारा फैमिली सिस्टम ऐसा है, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम अपने बच्चों को 3 तरह की जगहों पे ज्यादा उनको सेफ समझते हैं. देयर आर 3 काइंड ऑफ प्लेसेस जहां पे हम बच्चों को सेफ समझते हैं, और वही 3 जगह ऐसी हैं जहां पे जो हॉट स्पॉट्स हैं बेसिकली सेक्सुअल अब्यूज का. वन इज ट्रू. True, Hajar. अच्छा, now 3 हॉटस्पॉट्स हैं. वन इज आवर होम्स, और हमारे रिलेटिव्स के घर. सेकंड हॉटस्पॉट इज योर नेबरहुड्स, एंड थर्ड हॉटस्पॉट इज योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. 3 जगह हैं या 3 तरह के एनवायरमेंट हैं जिसमें सेक्सुअल अब्यूज ज्यादा होती है बच्चों की. वन इज आवर होम्स, आवर रिलेटिव्स होम्स. सेकंड इज our neighbors and friends, and third is our educational institutions. ये 3 जगहों पे. अच्छा, ये 3 जगह ऐसी हैं जिसमें हमारा कल्चर ऐसा है that we trust them. हम अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को ट्रस्ट करते हैं. we trust them with our kids. हम अपने रिलेटिव्स को ट्रस्ट करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स पे ट्रस्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए, और अपने टीचर्स पे करते हैं that they will likely to be tender towards the school kids. लेकिन अगर आप देखें तो हमारे मोस्टली जो सेक्सुअल अब्यूज के केसेस हैं, उसमें या रिलेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग अंकल्स, इंक्लूडिंग कजन्स. उसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके नेबर्स और या फैमिली फ्रेंड्स. सो आपके घर के लोग, यानी फैमिली के लोग, फैमिली से मतलब होता है आपके अंकल्स, कजन वगैरह, और आपके नेबर्स और फ्रेंड्स. और तीसरे इन्वॉल्व होते हैं, दे आर स्कूल टीचर्स, चाहे मदरसा के हों, एलजीएस के हों, किसी भी जगह के हों. दीज आर 3 पॉइंट, ये 3 हॉटस्पॉट्स हैं. हैव यू हर्ड एग्जैक्टली? तो पॉइंट इज कि क्या आपको रैंडम अब्यूज बहुत कम नजर आएगी. इट विल रेयरली बी अ रैंडम अब्यूज. इट विल ऑलवेज बी, जो पकड़े जाते हैं लोग वो इन्हीं में से मोस्टली होते हैं. ऐसा ही हुआ था ज़ैनब बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ था. इट वाज द नेबर, मोस्ट ऑफ देम ड्राइवर्स. एग्जैक्टली ट्रू कायनात. नाउ पॉइंट इज कि इसका मतलब ये हुआ कि जिन पे हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वहां पे सबसे ज्यादा खतरा होता है. सो व्हाट वी नीड टू डू, हाउ टू डील विद इट. तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग होती है दैट वी शुड नॉट अलाउ एनीबॉडी एक्सेप्ट द पेरेंट्स टू टच देयर किड्स. वी शुडंट अलाउ दैट एट ऑल. ना आप अपने फैमिली मेंबर्स को, ना अपने नेबर्स को, ना फ्रेंड्स को, ना टीचर्स को. they shouldn't be allowed to touch their kids. Absolute policy of no touch. अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं I would not call it a stranger danger education. I would call it a no touch policy, because those who do these things are not strangers. Actually, they are known people. आपके अंकल्स हैं. ही इज नॉट स्ट्रेंजर. मेरी एक पॉइंट है, नो गुड टच, नो बैड टच. इट्स जस्ट अ नो टच. मेरी अंडरस्टैंडिंग है. हो सकता है आप लोग इसको डिफरेंट नहीं. बिकॉज देखिए, एक
3 साल के बच्चे को गुड टच बैड टच आप कैसे सिखाओगे? If a 3 years child is raped, how can you teach that 3 years old to be having a good touch or a bad touch? You can't do that. Just don't do it. Just don't allow the touching to your kids. मेरा आपसे सवाल है, वैसे बाय द वे आपसे पूछ रहा हूं, हम कोविड-19 के केस में रह रहे हैं, कोविड-19 के केस में जब रह रहे हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि हम बगैर हैंड शेक किए जिंदा है ना? We are still friends, we are still family, despite not shaking hands, without a touch and all that. So why not adopt a safe policy towards our children? If people love our kids, why can't they love them without touching them? Why can't we be expressing our love, our affection to our nephews and nieces and neighbors and friends, sons and daughters, without this thing? Wahid, that's true. Many members will be offended. Wahid, agreed. But who is more important, your kid or your family members? You will have to make choice. You will have to prioritize things. Give them example. जो माइंड करें उनको कहें ये लिस्ट ऑफ बच्चे हैं जिनके यहाँ फैमिली मेंबर्स ने अब्यूज किया हुआ है. So we need to educate our family members too on this one. So a strict no touch policy by the parents is the only way. और मैं अक्सर जब मेरी, क्योंकि I have a 3 years old daughter, तो मैं अक्सर अपने फैमिली मेंबर्स को कहता हूँ अगर आपको बहुत ज्यादा लाड आ रहा है उसे गिफ्ट कर दें. She will love to take the gift. So आप ना करें, आप उसे टच करने के बजाय आप उसे मोहब्बत जता रहे हैं ना, तो थोड़ा खर्चा कर लें आप, थोड़ा सा spend some money on that and उसको खुश कर दें. She will be happy with that. It's simple. You can always do that. We can always do that. हम अपने neighbors को, अपने friends को, why need to touch? And we should start with ourselves. We shouldn't touching others so that we don't allow others to do the same to our kids as well. This is what is important, जी. Absolutely. Or second चीज, obviously zero वाला point बहुत important है. Second is, the solution is that parents need to listen to their kids. That's true. They must build a trust in their kids. They must need to make children comfortable in sharing everything with them, even if it is noticeable or not noticeable. Train them in a way that they should share everything with you. हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, but considering जिस तरह के environment में हम रह रहे हैं, this is essential in Pakistan, if not a good idea. But you need to teach your kids कि आप उसको कर रहे हो. That's true, Hamza. Masculinity is the real problem. Again, the problem is that we don't. वो फिर gender issue पे आ जाएगा. Again, this abuse comes from the men. And this is again something that is not reported in Pakistan, and this is something that the men are unwilling to accept most of the times. That's true, Zulfikar. That's true. So true. So ये issues हैं जी पाकिस्तान के अंदर, but this is the problem here. Let's go to the population growth. Population growth is again a major problem in Pakistan. एक महीना पहले एक रिपोर्ट आई थी, काफी मीडिया में रिपोर्ट पब्लिश भी हुई. पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितना है? If somebody knows, it's 3.6 per couple. 3.6 per couple is the rate of population growth in Pakistan. ये महीना पहले की बात है, डॉन के अंदर आया था न्यूज. Now Pakistan has the largest or highest growth population growth rate in South Asia after Afghanistan. अफगानिस्तान के बाद हमारी हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है. नो इट्स 3.6. कायनात अच्छा, मैं परसेंटेज नहीं कह रहा प्लीज, मैं जो स्टेज दे रहा हूं दे आर 3.6 पर कपल. परसेंटेज में कैसे नापेंगे आप? अच्छा, वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, मैं इसको पॉपुलेशन पर कपल के सेंस में ले रहा हूं. सॉर्ट ऑफ वो ऑब्वियसली उसका मुझे नहीं पता, पर परसेंटेज का नहीं पता, बट दिस इज 3.6 कपल्स. अच्छा, हाउ मेनी, कितनी स्टैंडर्ड कितनी होनी चाहिए? द पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स शुड बी 2 चिल्ड्रन पर कपल. उसका क्या फायदा होता है? That it means that the parents must be replaced by their kids. So 2 would maintain the status quo. This is what is going to happen. Thank you. So
this growth rate in Pakistan's population is significant, and this significant growth rate is again causing almost all of the social problems. More children means more poor people, more unemployed, more teachers are needed, more doctors are needed, more roads are needed, more people threatened by pollution, or pata nahi kya kya. Everything gets doubled. Everything gets increased with the increased population. Personally speaking, I consider population growth rate as the main cause of most of the social problems that Pakistan faces. This is again a dilemma जी पाकिस्तान के अंदर. अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों है पाकिस्तान में? उसकी बुनियादी वजह बहुत सारी हैं, बट एक बुनियादी वजह है पॉवर्टी. Poor parents are likely to encourage more children, likely to produce more children, in order to, in the assumption or in anticipation of ending their poverty. They think that if there are more children, then there are more hands at work, more income, and therefore no poverty. ये उनकी एक anticipation है, or they forget what Kainat just said. More children would also mean more mouths to feed. That's true, but they forget that. They hope that more children would get some kind of income for them. दूसरी एक social attitude बता रहा हूँ. दूसरी वजह ये that people think that the daughters are not good enough to be a child, and for the sake of a male child, they actually produce more and more children. Sometimes the desire for a male child also results into more and more birth of the children. ये भी एक वजह होती है. अच्छा, एक और reason है, और वो है थोड़ा religious point of view से. Some people think that in Islam it is Allah that is going to take responsibility for the means of living, and Allah has not asked us to go for birth controls and all that. So in religious sense they encourage not to go for child family plannings and all that. They encourage to produce more and more children. ये भी एक पाकिस्तान के अंदर वजह है. Another reasons for this increased population is जो early child marriages हैं. Obviously, early child marriages are also one of the contributors, because the reproductive period of the parents that increases. आपका जो length period है उसके लिए medical language होती है, term होती है. So reproductive age जो है that gets increased, and therefore there is a probability of more and more children. And lastly, the lack of awareness in family plannings and all that. Pakistan के अंदर family planning is not considered to be an issue that needs to be discussed or that needs to be even shared publicly. Obviously classroom में आप बात नहीं कर सकते, media के अंदर तो definitely नहीं, problems हो जाती हैं. So Pakistan was one of the pioneers of family planning schemes in 1960s. अयूब खान साहब के ज़माने में हमने शुरू किया था, जब दुनिया के अंदर ये issue इतना highlighted नहीं था. But unfortunately, Pakistan has gone from bad to worse, और हमारे यहाँ अब ये schemes जो हैं, they are and this family plannings and all that. This is something that is considered a taboo, and it is not discussed. It is not even discussed publicly. So ये कुछ issues हैं population growth rate की वजह से. But again, population growth rate is the mother of all other social problems in Pakistan. That is also true, Zinira. मैंने इसलिए कहना कोई एक reason नहीं है. Sometimes there are so many reasons, and sometimes it is without reasons too. And sometimes those reasons are only known to the parents because they think that they can't share with somebody that they need more children. वो नाम अल्लाह का देते हैं कि अल्लाह की मर्जी है, लेकिन basically they have something in mind, and that is more maybe more money, or their desire for a male child, etc., etc. So this is again factor जी drugs पे आते हैं. Obviously, narcotics is a major problem in Pakistan. It was Benazir Bhutto Kainat that started it. That's true. Heather, it's probably not. Solutions of population issue. Umar, obviously, इसके लिए basic चीज तो ये है, वो है awareness, social change. Need to convince people increased population is not increased hands in work, it's increased mouths to feed. We need to tell them.
Secondly, we need to tell them the humanitarian aspect. If you have more than 2-3 children, तो आपको उसको equally आप affectionate नहीं हो पाते. You can't get affectionate to each other. Each child needs certain kind of support from the parents, love from the parents. ये फिर आपकी जो gap in child birth है, that is also important. जितना gap करेंगे, obviously उससे population growth कम हो जाएगी. Family planning is another thing that is needed. But इन सारी चीजों की जो basis है, वो है awareness. Social change. State can't enforce it like China and all that. We need to only make people aware of it. No, Kainat, I don't agree with that. Drugs. Drugs culture Pakistan में again एक problem है obviously. एक report जो government ने share की थी 2019 के अंदर और that was about Islamabad. जस्ट इस्लामाबाद के अंदर ये गवर्नमेंट जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी रिपोर्ट थी और जो स्टेट मिनिस्टर हैं शाया अफरीदी साहब उन्होंने कहा था दैट 90% ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन इस्लामाबाद और फेडरल टेरिटरी दे आर ड्रग एडिक्ट. उन्होंने कहा 90% ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज स्टूडेंट्स इन इस्लामाबाद इंक्लूडिंग मेल इंक्लूडिंग फीमेल they are using drugs. Not addicts as such, but they are using drugs. Some are addicts, some are not, but they are using drugs. ये state minister जो जान अल्लाह को जिसने देनी है वो exactly. So he was saying it in parliament, and this is just a reflection of the drug problem in Pakistan. The worst part of the drug problem is that they are targeting the youth of Pakistan. बिल्कुल ठीक कहा आपने हसन. ये जो डॉक्टर महा का केस है कराची के अंदर अभी जो मैं कल भी रिपोर्ट पढ़ा था उसमें यही था that it was linked with the drugs and all that. True. अच्छा अब इसकी बेसिक वजह क्या है ड्रग्स कल्चर की पाकिस्तान में? 3-4 मेन रीजन है. एक तो स्मगलिंग रीजन है. वी अलाउ द ड्रग्स टू स्मगल इन फ्रॉम अफगान. बॉर्डर मैनेजमेंट एक बड़ी वजह है और दूसरी जो वजह है वो उसकी अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली पॉसिबल होती है वहां से बॉर्डर से. सेकंड इज ऑब्वियसली जो वजह है वो है पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी एंड द फ्रस्ट्रेशन दैट पॉवर्टी काजेस. वो एक बड़ी रीजन है जिसके अंदर यूथ पर्टिकुलरली गेट्स फ्रस्ट्रेटेड आउट ऑफ दैट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एंड दे गेट इन्वॉल्वड इनटू ड्रग्स एंड ऑल दैट. थर्ड रीजन इज अ काइंड ऑफ सोशल स्टेटस या एक स्टेटस सिंबल बन चुकी होती है. दिस इज ऑल्सो अ रीजन व्हाई पीपल गेट इन्वॉल्व इन काइंड ऑफ ड्रग्स एंड ऑल दैट. तो एक एलीट तो नहीं कहूंगा वहीद, एलीट तो नहीं है. इवन इट्स नाउ अ मिडिल क्लास नॉर्म नाउ. एक जमाने में एलीट नॉर्म होती थी बट अब तो ये मिडिल क्लास की नॉर्म भी पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है. एंड लास्ट रीजन इज द इकोनॉमी अटैच्ड टू इट. सम पीपल टेक एंड सम मोस्ट ऑफ देम टेक ड्रग्स एज अ बिजनेस और ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. इट्स अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस एज वेल. तो इसलिए भी एक बड़ी वजह है पाकिस्तान के अंदर होने की. सो दिस इज ड्रग एडिक्शन. अच्छा पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है दैट मुझे ऐसे थर्ड पॉइंट 3-4 पॉइंट बताए थे. पहला एक पॉइंट मैंने कहा था कि बॉर्डर मैनेजमेंट है. दूसरा मैंने कहा था कि ये पॉवर्टी है. देन आई सेड इट इज बिकॉज ऑफ द स्टेटस सिंबल. ऐसा नहीं है उमर, ऐसा नहीं है. और चौथा मैंने कहा था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है. सो दीज आर 3-4 डिफरेंट रीजंस. ओके कायनात आगे चलते हैं. नाउ ड्रग्स में जो वर्स्ट पार्ट है ड्रग्स का दैट इज that it targets youth most of the times, and obviously youth is definitely the prime of Pakistan, the majority of Pakistan's population, and targeting them would mean that it is a huge economic and social burden on Pakistan because they get involved in law and order and all that जो बाकी crimes होती हैं उसके अंदर. Secondly, और इसके अंदर जो दूसरा main point है, Pakistan lacks the cheap and effective drug rehabilitation centers. जो drug rehabs हैं पाकिस्तान के अंदर mostly illegally operate, वो standard procedures को follow नहीं करते, and those that are those few that have a quality
environment in them, they are too expensive and they are out of the reach of the common man. So drug rehabilitation जो centers हैं पाकिस्तान के अंदर, they are also either too expensive or too little in Pakistan. This is again a dilemma जी जो पाकिस्तान के अंदर drugs के हवाले से है. Solution वही होगा, border management कर लेंगे आप, जो border management के अलावा law and order को maintain करें आप, educational institutions के अंदर आप governance को strong करें और awareness campaign करवाएं. These are the few things जो solution में चले. इसी point को reverse कर देंगे, solution आ जाएगा. Minorities. I guess we have already talked about minorities in extremism issue because it's primarily an extremism issue. But do you really think that there is an issue of minority rights in Pakistan? Is it an issue? Okay. Yes, no, I'm getting no answers as well. That's why I asked the question, because I know that there's lots of discussion on that as well. मैं एक छोटी सी example देता हूँ. My wife, she has done her PhD on Christians, human security of Christians. She worked on that. When she was conducting the survey, और जब survey कर रहे थे, and she was to defend her thesis. So let me tell you very interesting things. और ये जो idea that minorities don't face an issue, ये बड़ा interesting है. One of the panelists asked her a question, और ये recently बात है, पुरानी बात नहीं है, ये कोविड से 1-2 महीने पहले की बात है. एक क्वेश्चन से पूछा गया from one of the panelists, और सवाल क्या था सुनिएगा. उन्होंने कहा Christians are more secure than Muslims in Pakistan. Do you agree with this statement? Christians are more secure than Muslims in Pakistan. Acha, let me rephrase these questions. Are you sure, Wade? Christians have many times more sex than Muslims. No. Acha, let me explain जी. सुनिएगा please. मैं सवाल को replace करता हूँ. Is it that you get killed or you get discriminated because you are a Muslim? Or is it that you get killed or you get discriminated because you are a Christian? किसकी probability ज़्यादा होती है? क्या आपको इस बात से आपसे खाना अलग कर दिया जाता है कि आप एक मुसलमान हैं, या आपको इस बात से अलग कर दिया जाता है कि आप एक क्रिश्चियन हैं? आप शिया सुन्नी के नाम पे तो चले मारे जा सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन क्या आपको कोई इसलिए मारता है दैट यू आर अ मुस्लिम? बट डोंट क्रिश्चियंस गेट किल्ड बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस? दैट इज फैक्ट. सो हाउ कैन वी से दैट क्रिश्चियंस, अच्छा अगर आप बात कर रहे हैं किसी और सेंस में तो ठीक है, बट अगर मैं उनकी पर्सनल सिक्योरिटी की बात करूं, मुस्लिम्स डू नॉट गेट किल्ड बिकॉज दे आर मुस्लिम्स, बट क्रिश्चियंस डू गेट किल्ड. कम होते हैं, बट दे डू गेट किल्ड बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस. Similarly, the social discrimination is not because you are a Muslim, but it does happen if you are a Christian. Not to every Christian and not every Muslim does it, but it happens. आप सेक्ट की बुनियाद पे तो होते हैं, वो तो मैं एग्री करूं, बट आप मुसलमान रिलीजन की बुनियाद पे पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेट नहीं होते, लेकिन क्रिश्चियन होते हैं. व्हाट अबाउट हिंदूज? When they poke their nose into troubles, they get killed, and then blame goes on religion. नहीं, वही रिलीजन की तो बात कर ही नहीं. Do they always get killed because they poke their nose? Does it happen always? Doesn't happen. अच्छा, हम क्या यूजुअली क्या हमारे यहाँ क्रिश्चियंस के साथ खाना पसंद किया जाता है? I'm not comparing with other states, obviously. पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करा, मैं तो अपनी स्टेट की बात करूं. अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे. What about the minorities, non-Muslims की बात कर रहे हैं, हम सेक्युलर माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहे, रिलीजियस माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं.
That's true. That's true. That happens, you know. I have बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक छोटी सी एक स्टोरी सुना देता हूँ मैं आपको छोटी सी. आप लोगों को सलमान तसीर साहब का वाकया पता होगा. यस, नोबल. ये इंडिया वालों ने कल कहा है. ये नोबल आपने जो पॉइंट लिखा ना, ये इंडिया वालों ने कल कहा है पाकिस्तान को. सलमान तसीर साहब मर्डर हुए थे, एंड on the day when he got murdered in Islamabad, I was in the class in NUST. मैं नर्स में पढ़ा था. I was in the classroom when I was informed कि जी इस्लामाबाद को सील कर रहे हैं because this thing happened. And the very next day, I started a discussion in the class कि let's have a debate on this issue जो कि हुआ सलमान तसीर के साथ. हम इस blasphemy law के हवाले से और उस law के हट के भी क्या murder इस तरह से करना. Let's talk on that. So I wanted everybody to speak, and some of these students were unwilling to speak. So when I said, why you are not speaking? So one girl and one boy said, sir, we are not Muslims, and anything that we speak is likely to be used as a charge sheet against us. Every Muslim was speaking, and only non-Muslims were not speaking. And why not? Because they feared that they would get targeted. अगर मुसलमान ये लफ्ज़ यूज कर दे, उस पर ब्लास्फेमी के इल्जाम कम लगते हैं. आप मुझे उठाकर देखिए केस पाकिस्तान में. आप 100 केसेस को केस स्टडी करिएगा, और 100 केसेस में से ब्लास्फेमी का इल्जाम कितने मुसलमानों पे लगे हैं और कितने नॉन मुस्लिम पे लगे हैं. जस्ट रीड इट and you will find out. I'm not saying it's totally on non-Muslim, but most of them are on the non-Muslims, and that's very interesting. अब मरियम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, सम एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहा हूं, सारे नहीं obviously. That's true. और ये एक प्रॉब्लम है जी जिसकी हम बात करते हैं, that minorities do get discriminated on the basis of being or having a particular religion. देखिए ये ऐसे ही है, आपको मिसाल दूं, जैसे आप इंडिया में आपसे नारे मरवाए जाते हैं, वो हिंदू जो आपसे नारे मरवाते हैं वो आपसे पहले लेते हैं, आप गोश्त लेके जा रहे हैं, आप गाय का गोश्त तो लेके जा रहे हैं. इसको कहते हैं विजिलेंटिज्म. आप सोसाइटी समझती है कि इफ यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी यू आर सस्पेक्टेबल. आप जो है वो यू आर डाउटफुल, आपकी इंटेंशंस डाउटफुल है. सो वी एक्सपेक्ट, generally not everybody, but we expect that blasphemy will always come from Christians. We expect that it will always come from Ahmadis, it will always come from Hindus, जो भी religious minorities हैं उनमें से आएंगी चीजें. We expect that. This is again the problem in Pakistan. ये एक major problem है. It's vigilantism. Obviously not all Muslims do it. Islam तो definitely नहीं कहता, मुसलमान भी सारे नहीं कहते पाकिस्तान में, but जो करते हैं वो mostly मुसलमान ही होते हैं. Have you heard जहां पे Christians community ने एक पूरी जाके इन्वेड कर दिया हो, हमला कर दिया हो, किसी आग लगा दी हो मुस्लिम्स की कॉलोनी को पाकिस्तान के अंदर? दुनिया में तो करते हैं ना, इंडिया में तो करते हैं डेफिनेटली. तो ये पॉइंट इज यहाँ पे दिस इज द डायलेमा इन पाकिस्तान. सो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को डिस्प्ले, और मैं गवर्नमेंट की बात तो करना ही नहीं चाह रहा, बिकॉज यू मस्ट हैव रेड समवेयर, न्यूज़पेपर के अंदर अक्सर आ जाता है कि जी ये सेंट्री का काम है एंड ओनली क्रिश्चियंस आर एलिजिबल फॉर दैट. हैव यू सीन दोस पोस्ट्स? ये गवर्नमेंट पोस्ट कर रही होती है. दिस इज व्हाट हैपेंस. सो इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेशन? इफ इट इज नॉट, then हम discrimination किसको कहते हैं? I think that we need to redefine the word discrimination then. These discussing things happen from society, these things happen from, yes, exactly. That's true. That's true, sir. So, discrimination जो है ना वो minorities पे, social discrimination की मैं बात करूं, that happens. अगर किसी को यकीन नहीं आता तो एक दफा जाके आप विजिट कर लीजिएगा लाहौर में, यूहानाबाद को विजिट कर दीजिएगा, या आप किसी जगह पे विजिट कर लीजिएगा और अपनी इलाके की किसी भी माइनॉरिटी के एरिया को विजिट कर लीजिएगा और आपको आइडिया हो जाएगा. यस, जोसेफ कॉलोनी में जो हुआ, दैट्स ट्रू. तो यू विल गेट टू नो कि व्हाट हैपेंस एंड हाउ, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे लिव ओवर देयर. एनीवे, बट अच्छा, इसमें मैं ओवरऑल बात करेंगे विदाउट नेमिंग समबडी. एनर्जी. नाउ एनर्जी के अंदर एक जमाने में इशू होता था एनर्जी की अवेलेबिलिटी का. एनर्जी अवेलेबिलिटी वाज एन इशू. अब एनर्जी की अवेलेबिलिटी इशू तो नहीं है, एनर्जी मैनेजमेंट का इशू जरूर है. एंड व्हेन आई से एनर्जी मैनेजमेंट, सही, दैट्स ट्रू. यही बेसिकली आइडिया है दैट, बट सही आप भी जानते हैं हाउ रेयर इट हैपेंस इन पाकिस्तान, दैट आपके जो
Christian. So, because my wife worked on that, because I have very good Christian friends, so I know how they feel about different things. So एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ज्यादा आइडिया होता है. You don't get the news आप जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, but obviously आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चलता है इस चीज का ज्यादा. Anyway, let's go to the electricity management. Mahit, it's not about province, it's about area to area. Provincial और area wise different होते हैं units. बरका पब्लिक करें रिकमेंड जरा अपना. Okay, energy management. The real issue is पाकिस्तान के अंदर that energy management is a real problem in Pakistan in the sense that अगर आप पढ़े आजकल मोस्टली डिबेट इसी पे हो रही है और वो डिबेट यही है that पाकिस्तान के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होती है और फिर एनर्जी व्हेन इट रीचेस टू द कंज्यूमर्स और जब कंज्यूमर्स की जो एनर्जी स्पेंडिंग हैबिट्स हैं दे आर रियल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. हाउ नाउ इशू इज पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी का, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज आउटडेटेड and that is not sufficient enough to bear the load of more production and its distribution. So outdated hai, it can't afford to have it can't afford to cross a particular threshold of energy transmission. G ka absolutely true. Now इसमें रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक तो अमेरिका आउटडेटेड है, पुराना है. सेकेंड रीजन इज मैनेजमेंट इशू. मैनेजरियल प्रॉब्लम है, आपकी मैनेजमेंट ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, करप्शन एंड ऑल दैट. लेकिन इंपैक्ट क्या आता है इसका? इंपैक्ट ये आता है देयर आर इंक्रीज लाइन लॉसेस. आपकी ट्रांसमिशन के दौरान आउटडेटेड सिस्टम है, लाइन लॉसेस ज्यादा होती हैं, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट ज्यादा होती है और उसी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट की वजह से और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ईच ईयर वी लूज अ लॉट ऑफ लाइव्स. कल की खाली एग्जांपल अगर आप पढ़ लें, 2-3 एग्जांपल अगर आप उसको पढ़ लें तो आपको नजर आएगा कि आई गेस मैं कल पढ़ रहा था 19 पीपल डाइड इन कराची यस्टरडे और आउट ऑफ 19 जहां तक मुझे याद पड़ता है कोई 3-4 केसेस मैंने पढ़े जो कि इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से हु डाइड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन. सो इट इज मेनली बिकॉज दीज वर प्रिवेंटेबल डेथ्स. These were preventable deaths and people die because of it, just because of the poor management and all that. Current electrocution मतलब जो कि पानी और बिजली का, मुझे नहीं पता टेक्निकली क्या होता है, बट पानी बिजली के कनेक्शन से जब लोगों को होता है बारिश में कुछ इस तरह उसको बोलते हैं. बट एनीवे, नाउ दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम. अच्छा, दूसरा इंपैक्ट क्या आता है? लीकेज करंट. उमर, थैंक यू फॉर गुड वर्ड्स. दूसरा प्रॉब्लम ये आता है दैट इट क्रिएट्स एक्सपेंसिव एनर्जी. जो एनर्जी प्राइस, लाइन लॉसेस हो जाते हैं, आपके लॉसेस हो जाते हैं, लाइन के चोरी हो जाती है बिजली, एंड द कंज्यूमर हैव टू पे फॉर दैट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच आपकी जो एनर्जी कॉस्ट है दैट इज हायर, सो लीडिंग टू अदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. सो एनर्जी मैनेजमेंट मेजर इशू है. एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है, एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिस्टम का मसला है, मैनेजमेंट का मसला है. सिस्टम और मैनेजमेंट के मसले की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक्यूशन होती हैं, पीपल गेट किल्ड, इकोनॉमिक लॉस होता है और साथ ही आपकी जो प्राइस ऑफ एनर्जी है दैट आल्सो गेट्स हाई. और पाकिस्तान हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इन साउथ एशिया. तो साउथ एशिया में अफगानिस्तान से ज्यादा महंगी बिजली हम बेच रहे होते हैं, एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई पाकिस्तान के अंदर जो एक बाकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं. अब मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है, मेरे ख्याल में वही वो ये है कि स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट की ये कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोज ग्रेजुअल. में 2 दिन पहले की बात है, डॉन में अंदर बड़ा एक रिपोर्ट आई थी, जरा टेक्निकल थी, मुझे ज्यादा तो समझ नहीं आई, बट जो थोड़ी बहुत समझ आई वो यही थी दैट गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर अ ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन हमारे यहाँ प्राइवेटाइज हो चुकी हुई है, आईपीपीज काम करती हैं. 1990s में हमने प्राइवेटाइजेशन कर दी थी. अब हम जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं, जो डिस्कोज हैं, ये लेस्को वगैरह, ये इसी को हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जैसे हमने के मॉडल को किया था. तो आईपीपीज तो प्रोडक्शन वाली चीजें हैं, अब डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो चीजें हैं वो भी हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं. वी हैव मूव टुवर्ड्स दैट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट. तो ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी और यही सोल्यूशन है इसका. दैट इज द ओनली सोल्यूशन इन दैट. फूड इश्यूज, that's true, Asad, that's true.
रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें, दैट्स ट्रू। फूड की बात की जाए तो फूड सिक्योरिटी का इशू पाकिस्तान में अगेन इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान डज नॉट लैक द क्वांटिटी ऑफ फूड, द रियल प्रॉब्लम इज द पुअर फूड डिस्ट्रीब्यूशन, uneven food distribution. As a result of which, apparently, it creates the food crisis in Pakistan, and as a result of which, we have to import food products, as a result of which, the food prices go up. So, thank you, Hamza, for sharing some of the statistics. That's true. So, food के अंदर तीन main problems हैं. One, the malnutrition. People do not get adequate food. Second, it is expensive. Third, it is unevenly distributed. तीन main problems हैं. Malnutrition. Second is expensive, costly है. Third is it is unevenly distributed. अच्छा, तीनों लिंक करते हैं, but let me explain one by one. पहला पॉइंट जो मैंने कहा, malnutrition. Malnutrition means that you do not get the food that is required by the body. जो एक all inclusive ingredient food जो होती है, we don't get that. जो एक balanced diet जिसको हम कहते हैं, that is not available to everybody. और उस balanced diet ना होने की basic वजह क्या है? That is basic problem because people are poor, did not have access to all sources of food, and food is too expensive to be bought by almost everybody. और एक और वजह ये है malnutrition की, that people do not have the awareness about the जो nutrients हैं उसके बारे में हमारे यहाँ awareness नहीं होती. So somehow ये एक issue है malnutrition का, and that creates health problems and all that. और obviously a lot of children die because of the food nutrition problems. शरियात ठीक करें, इसी में food hygiene का issue भी आ जाता है. Malnutrition में जो poor quality of the food है, that is also a major problem in Pakistan. 33% child in Pakistan are underweight, and one of the reasons would be obviously the malnutrition of the mothers and the children. Yes, true. अच्छा, second is जो मैंने कहा वो है expensive. Food in Pakistan is too expensive, और उसकी expensive considering the poverty that we have. 25% population in Pakistan is poor and they can't afford food. World Bank की रिपोर्ट है जी, I quote that World Bank report of 2019. उसमें कहा गया that average Pakistani household spends 46% of its income on purchasing food. हम अपनी जरूरत का 46% पैसे खर्च करते हैं फूड के ऊपर. This is highest in South Asia. It doesn't mean that our income is low. It means that our food is too expensive. अच्छा, मैं ओवरऑल फूड की बात करूँ, that includes balanced diet. और फूड का मतलब है balanced diet, जिसमें प्रोटीन्स यानी मीट से लेकर वेजिटेबल्स तक, फ्रूट्स तक सारी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर. So average amount 46% is needed to needed for food by average household in Pakistan, which is way too much. और उसके बाद अगर आप education और health, अगर आप, because food is the primary thing, if you spend too much money on the food, obviously you're likely to make cuts on your education, you're likely to make cuts on your spendings, and you're likely to cut on your health and savings, etc., etc. So it's a major issue in Pakistan. और expensive क्यों है पाकिस्तान के अंदर food? Again उसकी basic वजह ये है because of the bad management. We import. हम जब import करते हैं तो obviously बात है उसकी वजह से पाकिस्तान में फूड एक्सपेंसिव हो जाती है. एंड सेकंड रीजन इज माफियाज एंड ऑल दैट. पाकिस्तान के अंदर माफियाज भी हैं जो आर्टिफिशियल प्राइस जो है वो बढ़ाते हैं, सप्लाई डिमांड के अंदर गैप क्रिएट करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द प्राइस ऑफ द फूड गेट्स एक्सपेंसिव, गेट्स हाई. लास्ट इशू है वो, लास्ट इशू में क्या कहा था? व्हाट वाज द लास्ट इशू? पहला था malnutrition, दूसरा था, and third is uneven distribution. Uneven distribution means that uneven simply means that the poor have little access to food, the rich have more access to food, and obviously food is available for some in abundance and it is not available to many. Or uneven distribution of food is linked with the regional disparities, regional economic disparities. The rich have access, the poor don't, and this uneven management is
देयर इन पाकिस्तान। ये भी एक पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है। इसीलिए आप देख लें, आप होटल्स में जब खाना खाते हैं लोग, तो अ लॉट ऑफ फूड इज वेस्टेड, और उसी होटल के बाहर उसी बचे हुए खाने को खाने के लिए अ लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग ओवर देयर। दिस इज द डायलेमा इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर एक मेजर डायलेमा है, फूड वेस्टेज जो है, दैट्स अ मेजर इशू इन पाकिस्तान। बट अगेन इसके फूड के प्रॉब्लम जो है वो ब्रॉडर इश्यूज हैं। होर्डिंग वगैरह की बात वही आ जाएगी, माफियाज की बात आ जाएगी। दैट्स ट्रू सर, दैट्स ट्रू इकरा। इफ चिल्ड्रन ईट फुली दे लिव फुली। एब्सोल्यूट ट्रूथ, ट्रू। वी शुड इम्पोज कम्युनिज्म, डन, लगाते हैं कम्युनिज्म। हाँ वो मतलब, लेकिन वो सॉल्व हो गया। आई डोंट नो अबाउट सेम एंड अदर्स। आई गेस वन डिश पॉलिसी तो पूरे पाकिस्तान में है ना? Is it entire Pakistan? Okay, लेकिन अर्बन एरिया में फॉलो किया जाता है। लाहौर में मुझे पता है इट इज फॉलोड स्ट्रिक्टली। जैसे पंजाब में है। अच्छा, नॉट इन कराची। दैट्स इंटरेस्टिंग जी। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट इन कराची, बट इट्स गुड थिंग इन पंजाब एटलीस्ट। ये लाहौर में भी होती है, लाहौर में स्ट्रिक्टली होती है, आई नो दैट। पोल्यूशन भी जाते हैं। पोल्यूशन इज अनदर प्रॉब्लम। वो असर रिपीट किया था कायनात के ऊपर। पाकिस्तानी स्पेंड 46% ऑफ देयर इनकम ऑन बाइंग फूड। मल न्यूट्रिशन सहित उसको मल न्यूट्रिशन कहते हैं, MAL आगे न्यूट्रिशन है। मल न्यूट्रिशन मींस व्हेन यू डू नॉट हैव एक्सेस टू बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट ना हो, एडिक्वेट क्वालिटी ऑफ फूड ना हो, तो उसको हम कहते हैं मल न्यूट्रिशन। सोल्यूशन फूड का ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म है जी। एक तो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज इफ वी वांट द सोल्यूशन टू दिस फूड क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो हमें इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो करनी पड़ेगी, आपकी पॉवर्टी को रेडिकेट करना पड़ेगा। सेकेंडली, वी नीड टू गो फॉर इंप्रूवमेंट इन मैकेनाइजेशन, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। आपको एग्रीकल्चर के अंदर जो मैकेनाइजेशन है, ताकि आपकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप जो एग्रीकल्चर एफिशिएंसी है, यू हैव टू इंक्रीज दैट एज वेल। रिडक्शन इन टैक्सेशन ऑन एसेंशियल फूड कमोडिटीज, दैट्स टू इकरा। वैसे हमारे एग्रीकल्चर वैसे ही टैक्स फ्री है, तो बट स्टिल यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। और फिर ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं। आप होर्डिंग को, माफियाज को काउंटर करने के लिए यू नीड टू एनफोर्स द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एज वेल। और आखिरी फैक्टर है, और वो है पॉपुलेशन को कम करना पड़ेगा। वी हैव टू कंट्रोल पॉपुलेशन एज वेल। हाई डेंसिटी फार्मिंग, दैट्स ट्रू, ट्रू। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात ठीक करेंगे ना, डायरेक्ट टैक्सेस तो इतने नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। ट्रू। पोल्यूशन पे चलते हैं जी। ऑब्वियसली पोल्यूशन के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। बहुत सारे इश्यूज में से फॉर एग्जांपल लैंड, एयर, सी, लैंड, एयर एंड वाटर, ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन आर देयर इन पाकिस्तान। और ऑब्वियसली स्मोक इज एन एग्जांपल। ये कराची के अंदर जो अर्बन फ्लडिंग हुई है, दैट इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द लैंड पोल्यूशन, अर्बन पोल्यूशन उसको हम कह सकते हैं। और देयर अदर एयर पोल्यूशन की बात तो ऑब्वियसली स्मोक में आ जाएगी, लैंड की बात आ जाएगी, वाटर की बात की जाए तो कंटेमिनेशन की बात की जा सकती है। सो अगेन पोल्यूशन की वजह बहुत सारी हैं। ऑब्वियसली पॉपुलेशन इज वन रीजन, और दूसरा बात है लैक ऑफ अवेयरनेस। Lack of awareness, increased population, they are the two main reasons for this pollution. Obviously, आप उठाकर देखें, no, it's not the mother of all issues. I don't call it. Pollution is not mother of all issues. It is an issue of urban management. Urbanization के urban management के issues जरूर हैं, but सारों के नहीं है। Health के से related भी आती हैं, जैसे स्मोक वगैरह आ जाती हैं। अच्छा, इसमें किसी तक गवर्नमेंट का रोल भी बनता है। मैं आप में से किसी ने अगर लास्ट ईयर ट्रेवल किया हो उधर नॉर्दर्न एरियाज में, तो शायद गलियात के रीजन में अगर आपको पता हो, तो उन्होंने अब फाइन रखा हुआ है, 5000 रुपीज फाइन है अगर आप लिटरिंग करेंगे या आप प्लास्टिक वगैरह बाहर फेंकेंगे रोड के ऊपर। मोटरवेज के ऊपर फाइन होते हैं। किया है, मेरे सामने किया है, मैंने देखा है, मैंने लोगों को देखा है फाइन होते हुए देखा है। मेरा नहीं हुआ, बट आई हैव सीन पीपल हैविंग अफेक्टेड बाय दैट। बट पॉइंट इज कि मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, दे आर टू वीक एंड टू प्रॉब्लमेटिक। अच्छा, आपको पता है इसमें यूथ भी थोड़ा प्रॉब्लम बनता है। फॉर एग्जांपल, यू आर द यूथ,
And do you know that you can, अगर आपके एरिया में वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होती तो you can control it to some extent again. Umar, don't comment please, I request. अच्छा, now एक मिसाल देता हूँ कोई छोटी सी. आप लोगों को एक होगा कि एक है राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट टू इंफॉर्मेशन नाम सुनोगे? RTI. Now, if somebody from municipality doesn't come to pick up the waste in your locality, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. If somebody doesn't come in your locality to pick up the waste, what you can do is आप कंप्लेन करें, कंप्लेन भी नहीं, आप एक इंफॉर्मेशन साइट करें, आप बताएं कि जी ये जो आपकी वेस्ट मैनेजमेंट है इसमें इस लोकेलिटी में जो गाड़ी आती है, what is give me the logbook of or the copy of the logbook of the waste management staff that is deployed in this part. उनकी attendance list चाहिए. You can demand that. अच्छा, अब होता ही है प्रैक्टिकली, मैं इसको लिंक करूं सर, होता ही है कि वेस्ट मैनेजमेंट का स्टाफ ऑन पेपर हाजिरी देता है, प्रैक्टिकली वो नहीं आते. दे डोंट कम ओवर हियर, दे डोंट वर्क. करप्शन होती है. आप लेकिन उनसे जब लॉग बुक मांगेंगे, when you will have to ask them the logbook, they'll be forced to make sure that you are present. You can hold them accountable by demanding information from any government department that works on public spending. कोई भी डिपार्टमेंट जो पब्लिक फंडिंग से चलता है, जो आपके टैक्स से चलता है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्वाइट डिफेंस के. ऑब्वियसली आप फौज तो नहीं पूछ सकते ना, आसिम बाजवा को नहीं पूछ सकते आपकी कहां मिले, बट you can ask the even deputy commissioners for his logbook. You can ask even the chief minister the expenses of his helicopters. You can ask the attendance sheet of any workers that I want to know about that. आपका ये राइट है पूछना, और आपको कुछ नहीं करना, आपको सादे कागज पे लिखना है. if इसको हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन. अंडर 18th amendment this right was given to Pakistani people. बट ऑब्वियसली पंजाब का लॉ है, सिंध का लॉ है, केपीके का लॉ है. पंजाब का और केपीके का लॉ दे आर मोस्ट इफेक्टिव लॉज. जो यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने बनाया था, शहबाज शरीफ साहब ने, वहां पे पीटीआई ने बनाया था. सिंध का लॉ थोड़ा वीक लॉ है, बट स्टिल यू कैन आस्क फ्रॉम जो सरकार दे आर बाउंड टू. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं. आपको पता है आप लोगों ने सुना होगा इमरान खान साहब पे हेलीकॉप्टर केस चल रहा है, अगर आप जानते हो. इमरान खान साहब पे हेलीकॉप्टर केस राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से चल रहा है. वो ये था कि इमरान खान साहब केपीके के अंदर उनकी गवर्नमेंट थी, और नहीं वो एक और है. वो ये था कि इमरान खान साहब की केपीके में गवर्नमेंट थी और उन्होंने अपना लॉ पास किया था राइट टू इंफॉर्मेशन. अच्छा, उसमें वो ये था कि इब्रारुल हक साहब और पीटीआई के बाकी जो लोग थे, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, दे यूज्ड द केपीके गवर्नमेंट्स हेलीकॉप्टर्स. अच्छा, अब आम बंदों को तो पता होता है. यहां पे एक बंदे ने, एक जर्नलिस्ट ने आरटीआई फाइल की. उसने कहा कि जी आप मुझे बताएं आपके हेलीकॉप्टर में कौन कौन ट्रेवल करता रहा, लॉगबुक बताएं उसकी, और कितना खर्चा आया. अब फंस के उन्होंने कहा जी, केपीके की गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ये सेम डिमांड की गई थी पंजाब में शहबाज शरीफ साहब से. शहबाज शरीफ साहब ने लिख कर दिया उधर से, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन को लिख कर दिया, और वहां पे केपीके की गवर्नमेंट ने अपने कमीशन को लिखा कि जी ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम शेयर नहीं कर सकते, हमारा सिक्योरिटी मसला बन जाएगा. सिक्योरिटी मसला कैसे बन जाएगा? वहां पे एक इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसने केपीके को कहा, चीफ मिनिस्टर को, यू विल हैव टू फर्निश इट, इट इज बाइंडिंग. अगर आप नहीं करेंगे, हिज सैलरी, द केपीके सीएम मिनिस्टर सैलरी कैन बी स्टॉप्ड. उससे सैलरी बंद करते हैं, एंड दे कैन बी इवन ट्रायल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. इट्स अ क्राइम नॉट टू शेयर इट. अगर इंफॉर्मेशन कमीशन कह दे यू शुड शेयर इट, एंड इफ यू डोंट, इट्स अ क्राइम, इट्स लाइक अ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होती है. केपीके वाली गवर्नमेंट ने डर के मारे लॉगबुक शेयर कर दी. जब लॉगबुक शेयर की, पब्लिक में पता चला कि जी उसके अंदर इमरान खान साहब भी विजिट करते रहे, इब्रारुल हक साहब भी विजिट करते रहे. दो नाम मुझे पता है, और भी होंगे. उन्होंने कहा ये तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं थे, हाउ केपीके गवर्नमेंट कैन बी गिवन टू समबडी हु इज नॉट फ्रॉम द केपीके गवर्नमेंट. तो उस पे केस चल रहा है इमरान खान साहब के ऊपर, आपने मिस यूज किया उसके हेलीकॉप्टर को. आज भी वो केस चल रहा है. हेलीकॉप्टर की खरीदारी पे भी था,
और हेलीकॉप्टर के यूज पे भी है, दोनों पे केस चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने रिफ्यूज किया कि जी हाँ ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, हम शेयर नहीं कर सकते, और यहां पे इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है ना करें। बट इमरान खान साहब पे वो केस चल रहा है, क्योंकि यहां पे शहबाज शरीफ पे केस इसी चल रहा था कि उस वक्त हमजा शहबाज यूज टू यूज दैट हेलीकॉप्टर, वो सब्जी मंडी पे छापे मारने के लिए जाते थे, शेखुपुरा में और गुजरांवाला में और बाकी जगहों पे जाके। सो व्हाट आई एम सेइंग इज यू कैन रियली होल्ड इवन द सीएम अकाउंटेबल, ये तो फिर आम स्टाफ है, यू कैन डू दैट, बट नोबडी डज दैट, कोई भी नहीं करता। बट यू नीड टू यूज इट जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो एक पोल्यूशन के जो इश्यूज हैं, सोल्यूशन है ऑब्वियसली, ट्रू ट्रू जोजीना, एग्रीड। सो पोल्यूशन के जो सोल्यूशंस हैं ऑब्वियसली वो बेटर अर्बन मैनेजमेंट तो है ही है, साथ जो ब्रॉडर एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वी नीड टू डील विद देम, बिकॉज आपको पता है स्मोक वगैरह के इश्यूज, एयर पोल्यूशन के इश्यूज वो ब्रॉडर क्लाइमेट से भी लिंक करते हैं और आपकी गवर्नेंस और मैनेजमेंट से भी लिंक करते हैं। क्योंकि अर्बन एरियाज में ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आते हैं, देयरफॉर अर्बन मैनेजमेंट जो है वो एक मेजर सोल्यूशन यहाँ पे बनता है। अवेयरनेस करने की ज्यादा जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर करने की जरूरत है, और गवर्नेंस को इंप्रूव करने की जरूरत है। दीज आर थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर रिजॉल्विंग दिस इशू। जनरल, लेकिन इन सम केसेस नो, बट इन मोस्ट केसेस दे डू, वो बताते हैं। आप एक दफा जरा बाकी बच्चे ना गूगल करिएगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन पे कितने लोगों को कितनी सजाएं हुई। आई नो वन ईडीओ, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, भागलपुर का शायद, हिज सैलरी वाज स्टॉप्ड, उसकी सैलरी बंद कर दी गई, कंप्लीट सैलरी बंद कर दी गई। क्यों? बिकॉज एक स्कूल टीचर ने उससे मांगा था, आरटीआई फाइल की थी कि मेरी प्रमोशन होनी थी, सीनियरिटी में मेरा नंबर था, आपने किसी और को कर दिया, मुझे सीनियरिटी लिस्ट बताएं। उसने कहा मैंने नहीं देनी। छुपाते हैं लोग। उसने आरटीआई फाइल की, उसने कहा कि मैंने नहीं देनी, इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा इसकी सैलरी बंद कर दो, एंड आफ्टर दैट इफ ही स्टिल वुड रिफ्यूज फॉर 1 मंथ, उसको आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ले जाएंगे। ट्राई इट। एक और मिसाल देता हूं छोटी सी। आप लोगों को पता है पंजाब यूनिवर्सिटी की बस के नीचे एक आकर एक बच्ची की डेथ हुई थी मॉडल टाउन के अंदर। शी डाइड अंडर बस, यहाँ मॉडल टाउन में, लाहौर में वाकया हुआ था। अच्छा, उसके बाद बिकॉज मैं आरटी, चूंकि पंजाब का जो लॉ है, व्हेन इट वाज बीइंग फ्रेम्ड, सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट कैंपेन, जब हमने शुरू की थी कैंपेन कि आपको ये लॉ बनाना चाहिए 2013 के अंदर। तो आई एक्चुअली इंस्टिगेटेड सम स्टूडेंट्स फाइल एन आरटीआई। मैं नहीं कर सकता था बिकॉज मेरा इशू नहीं है। मैंने स्टूडेंट को कहा आप फाइल करें। आप फाइल ये करें कि हम गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, हम आपको फी पे करते हैं, और उस फी में से हाउ मच फंड्स आर स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ये बताती नहीं है यूनिवर्सिटी हमारी, कोई पब्लिक सेक्टर नहीं बताता आपको कितने फंड आप खर्च करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। और जितने फंड खर्च करते हैं, आप बताएंगे ना कि हमने इतनी बसें खरीदी हैं, तो फिर बसें कहां हैं, आप अगला सवाल पूछेंगे। तो उसका इतना प्रेशर पड़ा, एटलीस्ट 10 मेरे स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने पुश किया था कि आप एप्लीकेशन फाइल करें, और विद इन अ वीक पंजाब यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड परचेज ऑफ 3 मोर बसेस। कैसे आ गई? यू नो, इफ यू डोंट, दुनिया में एक सिस्टम चलता है प्लीज, गवर्नेंस हमेशा तब इंप्रूव होती है व्हेन यू डिमांड फॉर इट। इफ यू डोंट डिमांड फॉर इट, यू वोंट गेट इट। डिमांड एंड आरटीआई सादे कागज पे आपने करना होता है, कोई आपका खर्चा नहीं आता। समटाइम्स इट रिजल्ट्स इन अ रिस्पांस, समटाइम्स इट डजंट। बट मरियम, इसको आप अगर आप केपीके में है या पंजाब में है, तो दोनों सूबों में एससीएन वालों के साथ आई एम सॉरी, बट वहां इफेक्टिव लॉ नहीं है। लॉ है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। पंजाब और केपीके में बड़ा इफेक्टिव लॉ है। आप ये करेंगे सादा कागज पे, आप गूगल पे जाएं, आप लिखें पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन, या अपने अपने प्रोविंस का नाम लिखकर केपीके इंफॉर्मेशन कमीशन, उसकी वेबसाइट पे सारा प्रोसीजर लिखा होता है कि कैसे फॉलो होता है। इट्स सिंपल, सादे कागज पे दरखास्त देनी होती है, कोई खर्चा नहीं है, आप पोस्ट करेंगे, सिंपल। बट डू दैट। वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जी, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। पाकिस्तान में वाटर के 2 इश्यूज हैं मेन। एक इशू तो ऑब्वियसली इट इज लिंक्ड विद द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, और सेकंड इज द इशू ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर। फायजा, आप पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, आप एक सादे कागज पे एप्लीकेशन लिखें टू द इंफॉर्मेशन ऑफिसर पंजाब यूनिवर्सिटी। उस बंदे का नाम है, खुरम नाम है उनका। आप नाम ना लिखिएगा, आप लिखें जी इंफॉर्मेशन ऑफिसर पंजाब यूनिवर्सिटी, सादे कागज पे अपने साथ आईडी कार्ड की कॉपी लगाएं, और उनको कहें आप हमें ये बताएं कि जो हमारी फीस से जिम के पैसे करते हैं, आप जिम की जो फैसिलिटी
लिखेंगे अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ में आपसे ये पूछ रही हूं, और फिर देखिएगा और उसकी आपको मिल जाएगा जवाब। नहीं आ रही आवाज? आप बताइएगा आवाज आ रही है? ओके, अब फाइन, ठीक हो गया। नहीं, इफ यू आर स्टूडेंट यू कैन आस्क एट दैट टाइम। अगर आप स्टेक होल्डर हैं फिर आप पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज फौज को खत ना लिखिएगा, ये मैं बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आप उनसे पूछेंगे जी आपकी फौजी कहां कहां डिप्लॉयड है, तो वो आप मसला हो जाएगा आपके लिए। वाटर, दो इश्यूज हैं जी। One is the issue of scarcity of water, and second is the quality of water. Pfizer, go to your respective province information commission office. आप इंफॉर्मेशन कमीशन का नाम लिखिए अपने सूबे का, सिर्फ नाम लिखें पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन, केपीके इंफॉर्मेशन कमीशन, और उसकी वेबसाइट पे सारी डिटेल मौजूद है। नस्ट वाले सिर्फ दुआ करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है वो आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, उसकी वेबसाइट पे ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, बड़ा सा लिखा हुआ है आरटीआई, राइट इन्फॉर्मेशन, उस पर लिखा हुआ है। नासिर, मैंने कहा हर बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर वीक लॉज हैं, बट लॉज मौजूद हैं और वहां भी इंफॉर्मेशन कमीशन मौजूद है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट यू कि आप वहां पे आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा सिंध में और उसमें बलूचिस्तान में, बट यू कैन स्टिल ट्राई दैट। वाटर पे आते हैं जी प्लीज। वाटर की इश्यूज दो, स्कार्सिटी और क्वालिटी। पहले स्कार्सिटी पे जाते हैं। इन पाकिस्तान पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इन 1947 वाज 5,000 cubic meter per person. 5,000 cubic meter per person was the water availability in Pakistan at the time of independence. Lekin that has reduced to exact number, but it's less than 900 cubic meter per person in 2019. The per capita water availability has reduced. पानी कम नहीं हुआ, per capita availability कम हुई है. There are many reasons for this reduction, and one of them is increased population. Second is the environmental factors. The third one is the Indus Waters Treaty. But the problem is mainly because of increased population, because of Indus Waters Treaty, because of environmental factors, the per person water availability has reduced over the period of time. It has reduced by almost 80%. Pakistan is a water stressed country, and soon we are going to become water scarce country. हम वाटर स्ट्रेस्ड हैं, वाटर स्कार्स बन जाएंगे, शदीद पानी की कमी वाले मुल्क में हमने कन्वर्ट हो जाना है डेफिनेटली बाय 2025। क्यों वाटर अवेलेबिलिटी कम हुई? मैंने 3 रीजन बता दिए, जिसको हम ब्रॉडली कह सकते हैं। हमारे यहाँ इश्यूज जो है वो पानी के इश्यूज इन 3 बड़ी वजहों से। इंडस वाटर ट्रीटी में 3 दरिया इंडिया को दे दिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर की ओवरऑल क्वांटिटी कम हो रही है, और फिर ऑब्वियसली अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास पर पर्सन अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। इंपैक्ट्स क्या होंगे? ऑब्वियसली इसके इंपैक्ट्स वी ऑल नो दैट इट हैज इंपैक्ट्स ऑन आवर एग्रीकल्चर, ऑन आवर फूड, ऑन आवर जॉब्स। बिकॉज एग्रीकल्चर नहीं होगी तो जॉब्स ऑटोमेटिकली, एग्रीकल्चर, फूड, जॉब्स, सर्वाइवल आप कह सकते हैं, दैट इज अगेन अ मेजर फैक्टर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, असल इस पे बात करेंगे। सेकंड इशू जो है वाटर की क्वालिटी का, एंड दैट इज द इशू दैट पाकिस्तान के अंदर जो वाटर अवेलेबल है खासकर दैट इज यूजुअली नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, एंड इट इज नॉट सेफ फॉर इवन एग्रीकल्चर समटाइम्स। जो ड्रिंकिंग वाटर है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। क्वालिटी ऑफ वाटर इज नॉट एनफ। मैं एक मिसाल देता हूँ छोटी सी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2019 की, that states that almost 80% of Pakistani population has no access to clean drinking water. 80%, और मैं अगर कराची की बात करूं तो मेरे ख्याल में 90% लोगों को नहीं है वहां पे। So
80% people do not have access to clean drinking water. This is just an example. Sewage system की बात है, हमारे उसकी बात है, filtration plants की weakness की बात है शमायुम. फिर हमारे पास आपके पास जो extraction के water sources हैं वो ज़्यादा effective नहीं है. Underground water pollution जो है वो भी एक reason है. There are lots of reasons why not, but lack of clean drinking water is the most important problem in Pakistan's water नहीं है. उसकी वजह से क्या होता है, but people still take water, they need water, you can't survive without water. तो आप जब unsafe water पीते हैं, तो we also know again, आप doctors बैठे हैं, that most of the diseases in Pakistan are water-borne diseases. उसी साफ पानी ना पीने की वजह से आपके mostly जो diseases हैं वो spread out होती हैं. वो कौन सी हैं? मलेरिया है, डायरिया है, टाइफाइड है, और पता नहीं क्या क्या हैं, जो भी हैं आप जानते हैं. मैं हमें कोविड नहीं आता, वाटर बॉर्न कोविड नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द डिजीज इन पाकिस्तान आर वाटर बॉर्न डिजीज. सो दिस क्रिएट्स हेपेटाइटिस है, दैट्स ट्रू. सो अ लॉट ऑफ डिजीज आर काज, तो एक हेल्थ इश्यूज आपके ऊपर बन जाते हैं. दैट्स अ मेजर इशू इन पाकिस्तान एज वेल. सिमिलरली आपका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो वाटर पोल्यूशन है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है, दैट और जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, दैट आल्सो कंटामिनेट्स वाटर्स, और वो भी आपकी एग्रीकल्चर के लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए, आपके घरों के लिए, दैट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान एज वेल. सो वाटर क्राइसिस जो है वो भी एक मेजर इशू है. हेल्थ से भी रिलेट करता है, एम्प्लॉयमेंट वाले से भी रिलेट करता है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मतलब है बेसिकली मैं इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग की बात कर रहा हूं. पीपल गेट ट्रैफिक्ड आउटसाइड पाकिस्तान, from Pakistan to outside world, mostly for two reasons. One is mostly for jobs, and second is for pornographic things. Prostitution वगैरह या child pornography वगैरह के लिए हम उनको स्मगलिंग होती है. पहला पॉइंट कि जो जॉब्स के लिए, जो कि ज्यादा स्मगलिंग. So people mostly are smuggled out of Pakistan for because people like to move towards Europeans and developed world for better economic living. They would like to move towards Europeans and American countries. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. कभी आपने सोचा इस बात पे, हमारे यहाँ ये जो स्मगलिंग होती है इंसानों की, why they don't go to Arab countries? Why to Europeans? यहाँ भी तो जा सकते हैं, अरब भी तो रेच है. इसलिए because Europeans do have some soft corner for migrants. Arabs don't. Arabs don't tolerate them at all. So the way में जाएंगे तो नहीं, मुस्लिम स्टेट्स नहीं, मुस्लिम होने की वजह से नहीं, because of the states policies. जो अरब स्टेट्स हैं, they are too harsh on those migrants. Europeans are a bit soft. अब hard हो रहे हैं, but mostly they are soft too. सऊदी अरब का क्या है, वो सर्कल कर दें, आपको उनको पूछ भी नहीं सकते जाके. तो वहां पे इशू बन जाएगा. यूरोपियंस जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और यहाँ पे एटलीस्ट पब्लिक किसी हद तक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है. अच्छा, अब प्रॉब्लम इज दैट ड्यूरिंग दैट ह्यूमन स्मगलिंग प्रोसेस अ लॉट ऑफ पीपल गेट किल्ड. उनकी जो पैथेटिक कंडीशंस हैं इन विच दे आर ट्रांसपोर्टेड, अ लॉट ऑफ देम डाई, दे सिंक, they sink in seas and all that. They die because of suffocations. They get killed in the borders, but it creates a huge humanitarian crisis as well. आपने देखा होगा ब्रिटेन में कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, एक कंटेनर से a lot of people they were recovered who died because of suffocation. पूरा कंटेनर ही जो है वो हुआ था वहां पे. But anyhow, it's a major human rights issue जी, जो पाकिस्तान के अंदर involved है. There are gangs involved all across Pakistan who for monetary sake they give kind of incentives, they kind of lure people, ordinary people, poor people, to give them kind of an assurance that you will get jobs and a good life in Europe and all that. तो एक humanitarian crisis बन जाता है. दूसरा है जो है prostitution के लिए, child pornography के लिए people are smuggled. इसमें mostly those children and those girls, early age girls that are kidnapped, they are smuggled outside Pakistan for these heinous crimes. ये कम है, but still it still happens. They are sent abroad. अरब मुल्कों के अंदर भेजे जाते हैं उनको. They are sent into European states for child. इस तरीके से थाईलैंड वगैरह की साइड पे they are trafficked towards that.
ट्रू वो इवन ऑर्गन बिजनेस भी आ जाता है इसके अंदर, दैट्स ट्रू। वो स्मगलिंग इसलिए भी की जाती है बिकॉज ऑफ डिसेक्शन करके, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दैट बट इट्स अ मेजर इशू। ट्रू। लास्ट इज स्ट्रीट क्राइम्स। स्ट्रीट क्राइम को हम बेसिक पर्सनल सिक्योरिटी का इशू कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स इज अ मेजर इशू, और मेजर इशू इसलिए है बिकॉज हमारे यहाँ अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, और ये अर्बन इशू है वैसे बाय द वे, स्ट्रीट क्राइम्स रूरल इशू नहीं है सच। और स्ट्रीट क्राइम में आ जाती है मोबाइल थेफ्ट आ जाते हैं, मोबाइल थेफ्ट हो सकते हैं, गन वायलेंस, स्ट्रीट वायलेंस हो सकता है, इसमें आपकी डिकॉइट्स हो सकते हैं, इस तरह की चीजें जो वो सारी आ जाती हैं। इवन इसके अंदर वो भी आ जा सकती हैं, ये जो बेगरी के इश्यूज हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं, स्ट्रीट क्राइम में आते हैं, बिकॉज बेगरी जो है इट इज यूज्ड एज अ टूल फॉर स्ट्रीट क्राइम्स एंड ऑल दैट। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम्स होने की हरासमेंट भी इसके अंदर आ जाती है। ट्रू कॉमन। अच्छा, होता क्या है? होता ये कि ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं दे रिफ्लेक्ट थ्री ब्रॉड प्रॉब्लम्स, दे आर काज्ड बाय थ्री ब्रॉड प्रॉब्लम्स। वन, पॉवर्टी, जैसे शरियात ने कहा, that's true. Second, it is caused by unplanned urbanization. आप planned urbanization नहीं करते। Third, defective law enforcement. आपकी defective law enforcement होती है। ये तीन मेरे नजदीक मेन रीजन है। Obviously there can be other reasons too. अच्छा, कैसे? Poverty कैसे? Obviously मैंने इससे पहले कहा, if people are not having proper jobs, they have to survive. And if there no legal means are available, they can go either for beggary or for these crimes. These are the shortcut methods of, shortcut methods of getting. They're not always, but sometimes they are. Second वजह जो बनती है वो मैंने कहा, that is, नहीं आवाज आ रही? Please tell me, is it fine now? Okay, ठीक। दूसरी वजह मैंने कही वो है जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं। देखिए, गवर्नेंस मतलब जो डिफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट है। अब जाके पाकिस्तान में, और खासकर पाकिस्तान में भी पूरे में नहीं, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर हमारे यहाँ सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए। कराची में अभी प्लान कर रहे हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वहां पे इंस्टॉल करेंगे। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट में क्या होगा, तो आप यू विल बी, कसूर में भी है, दैट्स ट्रू। कसूर में तो उस ज़ैनब वाले वाकये के बाद से हुआ था, या बाद में जो वाकयात आए थे। कराची में नहीं इंस्टॉल, कसूर में हो चुके हैं, कराची में नहीं हुए। कराची में अभी प्लान किया है, जो पिछले दिनों मीटिंग हुई थी। नाउ उसका फायदा क्या होता है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ दैट आपकी अर्बन मॉनिटरिंग की जा रही है। सो एनीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन अ स्ट्रीट क्राइम कैन बी ऑब्जर्व्ड। अच्छा, व्हेन यू नो दैट योर क्राइम इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, you are likely to be deterred. जरूरी नहीं है कि हो, this is one way through you can deter them. Secondly, through those safe city cameras, you can track their movement, you can track their identities and all that. आप उनको सर्विलेंस कर सकते हैं, that's true. You can control to a greater extent those cameras. लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि ये जो लाहौर में भी सेफ सिटी के कैमरास हैं, अगर आप जानते हो, most of them are चलान तो वो चीज हो जाएगी, स्ट्रीट क्राइम्स कुछ हो जाएगी। तो आपको यहां पे डिफेक्टिव है उसके अंदर डिस्टॉर्शन। फाइन नाउ? फाइन टू सम, नॉट फाइन। खैर लास्ट पॉइंट है वैसे भी, फाइन नॉट फाइन, कोई बात नहीं। यस, दैट्स ट्रू कायनात। ओके, सो जो, अच्छा, इसी के से आपने देखा डॉल्फिन फोर्स की बात की गई होगी। सो डॉल्फिन फोर्स वाला भी एक ऑप्शन है। सो आपको एक इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट की जरूरत है। सेफ सिटीज आर वन मेथड, बट ऑब्वियसली यू नीड टू हैव एन इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट एज वेल। जो थर्ड रीजन मैंने बताया वो है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। When you do not have a planned urbanization, जिसके अंदर आप तमाम एग्जिट्स, तमाम जो वॉकवेज हैं, तमाम जो रास्ते हैं, आप उनको प्लान ना करें, ताकि आपकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट फ्रॉम सोसाइटीज, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फ्रॉम द सिटीज, अगर वो वेल प्लान ना हो तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज लाइकली टू
reduce the chances that culprits will get caught. So basically, street crimes are the cause of the governance problems, or you can prevent them by improving governance. Poverty एक वजह है, but बाकी issues जो हैं वो obviously governance के issues हैं. You can control the street crimes by better governance. और we have so many examples. मुंबई को देख लें ज़माने में it was the center of the gang mafias and all that. New York को देख लें it was the most unsafe city in the world at one time. But effective governance can really change. लोग वही होते हैं. You can change the governance and you can end those street crimes. This is all from my side जी. जुल्फिकार सर क्रिमिनल्स को मॉनिटर करने से अच्छा है पॉलिटिशियन एंड लॉ एनफोर्समेंट को मॉनिटर किया जाए. जुल्फिकार 2 और इसी के लिए इस्लामाबाद पुलिस में एक हो रहा है जी, एक डिस्कशन इस्लामाबाद में पुलिस में हो रहा है कि देयर कैमरास विल बी इंस्टॉल्ड ऑन दोस पुलिस ऑफिसर्स ताकि देखा जाए कि क्या हाउ इफेक्टिवली दे वर्क आउट. Yes, Arif, RTA law is not effective on Gilgit-Baltistan because फेडरल गवर्नमेंट का RTA अभी सेनेट में पड़ा हुआ है. फेडरल गवर्नमेंट का जब लॉ पास होगा तो गिलगित-बल्तिस्तान में शायद इन्फोर्स हो जाए. अब वो मुझे कंफर्म नहीं है कि वो RTA भी गिलगित में आता है कि नहीं आता. क्वेश्चन किस तरह से कंक्लूजन, ऑब्वियसली हर एक का टॉपिक का डिफरेंट कंक्लूजन हो जाएगा जी, क्योंकि हर एक इशू डिफरेंट है. बट सोशल इश्यूज में एक अगर आप कंक्लूजन लेना चाहें तो आपको लगता है कि मोस्टली मुझे लगता है 2 प्रॉब्लम्स हैं. एक इशू है गवर्नेंस का और एक है लैक ऑफ अवेयरनेस का. कहीं भी इशू ले जाएं अवेयरनेस नहीं होती लोगों में, और दूसरा इशू होता है स्टेट गवर्नेंस नहीं कर पाती. ये 2 मेन इश्यूज हैं. मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री सारी इट इज डिफाइंड बाय दीज 2 फैक्टर्स. पीपल आर रेकलेस, मोस्ट ऑफ देम. आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड जो यास्मीन राशिद ने किया था. पीपल आर रेकलेस एंड स्टेट इज इन द मॉडल ऑफ वी डोंट केयर. They don't care about the governance. So governance का इशू है और लोगों के अंदर अवेयरनेस का इशू है. ये 2 ही इश्यूज हैं. लेकिन लोगों की अवेयरनेस का इल्जाम लोगों पे नहीं लगा सकते, इसका इल्जाम स्टेट पे ही लगाएंगे अल्टीमेटली, बिकॉज़ इट इज द स्टेट रिस्पांसिबिलिटी टू मेक पीपल अवेयर. मैं भी थक गया हूं इसलिए मैंने कहा जी नो डोंट कोट हर, आई एम जस्ट सेइंग इट. इसकी किस हमेशा में सवाल आता है, मेरे ख्याल में शुरू बताया था, यूसरा ने भी पूछा, हमजा आपने भी पूछा. इसमें यूजुअली करंट अफेयर्स में तो सवाल नहीं आता. पाकिस्तान अफेयर्स में किसी एक पे आ सकता है, जिस तरह ऐसे आया एजुकेशन पे. पीएमएस के ऐसे देखे हैं हम लोगों ने? हैव यू सीन द पीएमएस एसेज इन पंजाब? सारा करंट अफेयर्स नहीं, सारा करंट अफेयर्स आएगा वो सवाल. तो ऐसे वगैरह में आ सकता है, पाकिस्तान अफेयर्स में आ सकता है, इस तरह से सवाल आ सकता है. महविश, यस आई कैन. और अगर आप प्लीज आपकी जो कोऑर्डिनेटर है मैम राजी वाला, तो मुझे करेंगे, मैं लिख के दे दूंगा. अभी मुझे जल्दी से देना मुश्किल हो जाएगा और फिर हम उससे बात करेंगे. अच्छा, एक लेक्चर हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा जी वो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर होगा. आई वुड ट्राई कि हम 2 ऑर्गेनाइजेशंस करें, सार्क और ओआईसी, बट नेक्स्ट क्लास हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे होगी. श्योर नासिर, अभी आप करवा लें बात, अभी करें हमको, मेरी बात करवा दें आपसे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस.